हाय एवरीवन, दिस इज नेहल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट nomenclature of coordination compound. That is a concept in 12th chemistry, coordination compound. Okay, so we begin. Nomenclature is very important in coordination chemistry because of the need to have an unambiguous method of describing formula and writing systematic name. Nomenclature coordination chemistry में बहुत important हो जाता है because we need something that is we need something that is able to explain a compound in such a way कि उस name से सिर्फ एक ही interpretation बने. I have right here an unambiguous method. What is the meaning of unambiguous? Something that is not open to more than one interpretation. I want something here. I want such names कि जब मैं उससे कोई स्ट्रक्चर सोचूं या जब मैं उससे कोई फॉर्मूला सोचूं तो उस जैसा सिर्फ एक ही कंपाउंड वर्ड में एग्जिस्ट करता हो. I want such type of detail. This is the necessity because we know we are not able to write formula or shape of any coordination compound always. अगर मुझे आपको किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है सो आई एम नॉट एबल ऑलवेज कि मैं आपको उसकी स्ट्रक्चर दे दूं. आई विल ट्राई टू गिव यू द फॉर्मूला और द नेम IUPAC नेम. सो द नेम शुड बी लाइक दैट कि उससे सिर्फ एक ही प्रिडिक्शन कर सके कोई. उस नेम से एक ही स्ट्रक्चर बने. ओके, मैं कुछ ऐसे ही नेमिंग चाहती हूँ. अगर ऐसा नहीं होगा सो देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन. ओके, so because of the need of such type of nomenclature, it is very important for us to know how to write name of coordination compound and how to write the formula of coordination compound. The formula and name adopted for coordination entity are based upon the recommendation of the International Union of Pure and Applied Chemistry. जो रूल्स हम फॉलो करने वाले हैं वो किसकी रिकमेंडेशन पे बेस है? IUPAC, that is International Union of Pure and Applied Chemistry. Both the rule of naming for coordination compound and the simple organic compound, like 11th organic chemistry में हम देख चुके हैं of naming of organic compound, which is also based upon IUPAC standard. So here we learn how to write formula of mononuclear coordination entity and naming of mononuclear coordination entity. Here we are going to learn about two things. One is the formula and other is the naming. Formula mean like I have a compound structure and I have to write it in a formula form, like in square bracket CONH3 thrice Cl3. We enclose them in square bracket. This type of representation is known as formula. Okay, and naming is like tetracarbonyl nickel. This is something like naming. So in this video I'm going to tell you how to write formula and how to write name of mononuclear coordination entity on the basis of IUPAC. Okay, so here one question arises in our mind कि मोनोन्यूक्लियर होता क्या है. मोनोन्यूक्लियर क्या होता है? मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब होता है अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी विच कंटेन अ सिंगल एटम. वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसके अंदर केवल एक ही सेंट्रल एटम है, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी. एंड हम यहाँ सिर्फ मोनोन्यूक्लियर की नेमिंग देखेंगे. द रीजन इज binuclear or trinuclear or polynuclear coordination entities are not in our syllabus. Okay, हमारा जो डिस्कशन है वो सिर्फ मोनोन्यूक्लियर तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेगा इस चैप्टर के अंदर. मतलब हमारे लिए इस चैप्टर के अंदर ओनली एक ही एटम सेंट्रल एटम हो सकता है. बट जैसा मैंने आपको ब्रिजिंग लिगेंड के डिस्कशन में बताया था कि देयर आर मैनी पॉसिबिलिटी व्हिच हैव मोर देन वन सेंट्रल एटम. ओके,
बट हम नेमिंग और फॉर्मूला राइटिंग सीख रहे हैं फॉर मोनोन्यूक्लियर। सो उसको पढ़ने से पहले, नेमिंग एंड नोमेनक्लेचर को पढ़ने से पहले हमें और टॉपिक पढ़ना होगा, ओके, which I'm going to teach you for ease. मुझे लगता है कि जब मैं आपको ये पढ़ा रही होंगी तो यू मे बी कंफ्यूज एट सम पॉइंट कि जैसे कॉम्प्लेक्स एनायन मैं बोलूंगी या कॉम्प्लेक्स कैटायन, so maybe you are confused at that point. So confusion दूर करने के लिए, for more simplicity, मैं एक और एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, which is very simple, uh, which is not a very big topic, only of 4 points. Okay, so let's have a look on this. Classification of complex or coordination compound. This is not a classification base of anything. This is simply based on cation anion कि cation anion कैसा है, simple है, complex है, okay. ये so the first is simple cation and complex anion. मेरे पास कोई coordination compound है, उसमें 4 possibility possible है. तो coordination compound के अंदर 4 possibilities क्या क्या है कि जो मेरा cation हो उसके अंदर वो simple हो, simple means like simple molecule, and complex anion means coordinate compound, और possibility है complex cation और simple anion हो, possibility है complex cation simple complex cation and complex anion हो, और possibility है neutral complex हो. Let's see one by one. Simple cation and complex anion, एक coordination compound जिसमें जो cation है वो तो simple हो, पर जो anion है वो complex हो, मतलब वो एक coordination entity हो. Example K for FeCN6. Here cation is potassium K plus, but anion is FeCN6 minus 4, which is a coordination compound. Okay, so this is an example of simple cation and complex anion. Similarly, NaCl4, that is here simple cation is sodium and complex anion is AlCl4 minus. So such compounds are known as simple cation and complex anion coordination compound. Okay, the example of complex cation and simple anion is COCO4Cl3. This is one example of this type. Cobalt carbonyl 4Cl3. Here, if I'm going to know about the charge on the coordination entity, so I got that the charge is -3. Okay, and the counter ion is 3Cl minus. The other example is complex cation and complex anion. This is also possible. हमें लगता है कि ये possible नहीं है दोनों complex हो, नहीं, क्योंकि हमारे मन में यही image बैठी हुई होती है, but ऐसा कुछ भी नहीं है. This is also possible and very widely they are found in nature. Okay, example PT ammonia 4 PTCl4. Okay, this is a compound. So this is one entity and this is another entity. They both are attached to each other because of the ionic bonding between this complex cation and the complex anion. Okay, or here one question you can ask me, that how I know what is the charge on this coordination spheres. Okay, कि cation पे क्या charge है, anion पे क्या charge है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? So yes, this is true कि हमें नहीं पता चल सकता कि इस पे क्या charge है, but okay, I'm saying that this is PT ammonia 4 plus 2 and PTCl4 minus 2. If I read like this, then it is completely okay that this is a complex cation and this is a complex anion. Okay, the fourth one is neutral complex. Some complexes doesn't have any charges on coordination entity, like in the case of PT ammonia 2 Cl2 or MnCO5. So this is a neutral complex. Okay, these both are neutral complex, and this is an example of coordination number 5. This is the only example of coordination number 5 which is given in the NCERT 12th chemistry. Okay, this is trigonal bipyramidal with coordination number 5. So do remember this example. This is manganese pentacarbonyl or pentacarbonyl manganese. Now let's start how to write formula of mononuclear coordination entity. The formula of a compound is a shorthand tool
which used to provide basic information about the constituent of the compound in a concise and a convenient manner. फॉर्मूला किसी कंपाउंड का एक शॉर्ट हैंड टूल है, एक शॉर्ट हैंड तरीका है किसी को प्रोवाइड करवाने का बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम कौन है, लिगेंड कौन है, चार्ज क्या है, या कौन प्राइमरी वैलेंसी है, कौन सेकेंडरी वैलेंसी है, इन सबको बताने का एक सिंपल नोटेशन इज फॉर्मूला। ओके, जो किस वे में लिखा जाता है, कंसाइज एंड कन्वीनियंट मैनर। कंसाइज मतलब संक्षिप्त रूप में, इन अ शॉर्ट फॉर्म, एंड कन्वीनियंट मतलब ऐसा जो लिखने में इजी हो। व्हाट आई वांट टू से हियर, लाइक अगर मुझे हम जैसे हम कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस से फैमिलियर है, CO, CONH3 thrice Cl2, okay, that discuss about this example. So in this example, okay, so let's discuss about this example of CONH3 thrice Cl3, okay. There can be many ways of writing formula. अब तो हम ये तो convenient way में ही लिख रहे हैं, but अगर हम इसे convenient way में ना लिखे तो भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। Like in formula I can write CO, then ammonia को मैं उसके नेम से ना लिख के उसकी स्ट्रक्चर से बता सकती हूँ, and chlorine को भी, and many other type, okay, but they are not convenient because मुझे उसकी need नहीं है। What is the need of writing here the structure of ammonia in the formula? Okay, सो लोगों ने बहुत कुछ सोच के ही फॉर्मूला लिखने के रूल्स बनाए। उन्होंने रूल्स बनाए कि कैसे फॉर्मूला लिखना है इन अ कन्वीनियंट एंड कंसाइज मैनर। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द रूल्स that is given by the NCERT for that is given in the NCERT and recommended by the IUPAC for writing nomenclature, that is bracket में formula. Okay, the first rule is central atom is listed first. For writing formula of a mononuclear coordination entity, central atom को हमेशा सबसे पहले लिखेंगे। ओके, और यहाँ ताकि आपको ये सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने एक पैरेलली एग्जांपल भी ले रखा है। आई एम आल्सो गोइंग टू step by step evolve by example. Example is, let's try to write formula of cobalt plus 3 complex bonded to 3 chlorine and 3 ammonia. लेट्स हम सोचते हैं कि हमें फॉर्मूला राइटिंग सीखनी है, हमें नहीं पता फॉर्मूला राइटिंग क्या होती है। लेट्स फॉर अ मोमेंट हम सोचते हैं कि हमें नहीं पता फॉर्मूला राइटिंग क्या होती है, कैसे फॉर्मूले लिखे जाते हैं। बस हमें इतना सा गिवन है कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर 3 कोबाल्ट प्लस 3 है जो बॉन्डेड है 3 क्लोरीन एंड 3 अमोनिया से। ओके, सो एज वी as we read, the central atom is listed first. हमने अभी अभी पढ़ा कि सेंट्रल एटम को सबसे पहले लिस्ट करना है। सो इनके फॉर्मूला में CO को मैंने सबसे पहले लिखा। दिस इज माय स्टेप 1। नाउ नाउ हम पढ़ेंगे अबाउट द सेकंड रूल। The ligand are then listed in alphabetic order. The placement of a ligand in the list does not depend on its charge and its number is written as subscript. अब जब हम फॉर्मूला के अंदर, अब हमने सेंट्रल एटम को तो सबसे पहले लिख दिया है, अब जब लिगेंड को लिखने की टर्न आएगी तब हम लिगेंड को किस ऑर्डर में लिखेंगे? in alphabetic order. What I want to say here, like in this example, मेरे पास chlorine is a ligand, ammonia is also a ligand here. पहले ammonia को लिखो या chlorine को लिखो या किसको भी लिख दो, हमें लगता है किसी को भी लिख दो कोई फर्क नहीं है, पर for a convenient and good method हमने हर चीज का रूल बना रखा है। द रूल इज लिगेंड को लिस्ट करना है इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। जो अल्फाबेटिकली पहले आता उसको पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकली बाद में आता उसको बाद। The placement of a ligand in the list does not depend upon its charge. यहाँ हम क्या कह रहे हैं, प्लेसमेंट का कुछ भी लेना देना चार्ज से नहीं है ऑफ लिगेंड। ऐसा नहीं है कि पहले नेगेटिवली चार्ज को लिखेंगे या पॉजिटिवली चार्ज को लिखेंगे या न्यूट्रल चार्ज को लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर टोटली बेस्ड अपॉन द अल्फाबेटिक ऑर्डर। एंड वन मोर थिंग, किसी भी दो लिगेंड के अल्फाबेटिक नेम पूरे सिमिलर कभी नहीं हो सकते बिकॉज दे आर डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड। सो वी ऑलवेज एबल to decide the alphabetic order of the ligand, and we have no need to decide anything about from its charge. Okay,
एंड जो नंबर ऑफ लिगेंड है, जैसे यहाँ क्लोरीन है वो 3 टाइम प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं है कि मैं लिखूंगी CO Cl Cl Cl, ओके, दिस इज नॉट द वे, because this is not convenient. What is the need for write it thrice? Okay, we can directly write 3, है ना, as a subscript. So this is also a rule that its number is written as subscript. So step second करते हैं. Here ligand are chlorine and amine. So alphabetically amine is listed before because NH3 का नाम क्या होता है, amine, और Cl माइनस का होता है chlorine, तो A पहले आता है, C पहले आता है, A पहले आता है. ओके, सो because of this reason अमोनिया को पहले लिस्ट करेंगे, then Cl माइनस. ओके, now the third rule is polydentate ligand are also listed alphabetically. जो मैंने ligands के लिए अभी rule बताया वो सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि मोनो के लिए, बाई के लिए, डाई के लिए. No, there is nothing like this. They are for polydentate. For all polydentate ligands, they all are listed in same manner by alphabetic order. And in case of abbreviated ligand, the first letter of the abbreviation is used to determine the position of the ligand in the alphabetic order. अब कभी कभार क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ लिखा क्लोरीन एंड अमोनिया बॉन्डेड है, अगर मैं लिख देती कि यहाँ 3En बॉन्डेड है, तभी भी हम समझ जाते हैं. अब एक क्वेश्चन उठता है कि जब मुझे अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक करना है तो मैं En से करूंगी या इथाइलिन 1,2 डायमीन से करूंगी. तो आंसर ये है, अगर एब्रीविएशन यूज है, अगर गिवन इंफॉर्मेशन में हम लिगेंड का एब्रीवेटेड नेम यूज ले रहे हैं, सो वी हैव टू यूज द फर्स्ट लेटर ऑफ द एब्रीविएशन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर. तो हमें एब्रीविएशन जो एब्रीवेटेड नेम है उसी को ही यूज लेना होगा फॉर डिटरमाइनिंग द अल्फाबेटिक ऑर्डर. And we know abbreviation is what? A shorthand notation of a word or phrase. Example, EN is a abbreviation for ethylene diamine, GLY is abbreviation for glycinate, DDT is abbreviation for ethylene diamine tetraacetate. Okay, so for deciding their alphabetic order, I have to consider these names. Okay, ethylene diamine ये पहले आएगा, ये पहले आएगा, इसे डिसाइड करेंगे. Okay. The fourth rule is the formula of entire coordination entity, whether charged or not, is enclosed in square bracket. When ligands are polyatomic, their formula are enclosed in parentheses. The ligand abbreviation are also enclosed in parentheses. जब हम फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखेंगे तो हमेशा उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे. ओके, अभी तक तो आप बोलेंगे कि ये तो हमें पता ही था. हमें पता इसलिए था क्योंकि हमने पहले से ही करेक्ट फॉर्मूलाज देखे थे. पर सी, अगर किसी ने कभी फॉर्मूला नहीं लिखा तब उसे थोड़ी ना पता होगा कि ब्रैकेट्स लगाने या नहीं लगाने. ओके, सो रूल क्या कहता है कि जब भी आप अपनी जो एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी को जब भी लिखोगे तो उसको कंप्लीटली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करोगे. ओके, ये इन्होंने क्यों कहा है? दिस इज बिकॉज अगर हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज नहीं करते तो हमें पता नहीं चल पाएगा कौन लिगेंड्स है एंड कौन काउंटर आयंस है. ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिफरेंशिएट देम. ओके, एंड व्हेन लिगेंड आर पॉलीएटॉमिक देयर फॉर्मूला आर इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस. कभी जब लिगेंड पॉलीएटॉमिक हो, जैसे NH3, इट इज अ पॉलीएटॉमिक लिगेंड. व्हाई इट इज अ पॉलीएटॉमिक लिगेंड? बिकॉज एक लिगेंड के अंदर एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है. जब ऐसे पॉलीएटॉमिक लिगेंड आए तो इनके फॉर्मूला को किसमें इंक्लूड करना? इन ब्रैकेट. पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट. तो इनके फॉर्मूला को ब्रैकेट में लिखना है. ओके, एंड द लिगेंड एब्रिविएशन आर आल्सो इंक्लूड इन पैरेंथेसिस. अगर लिगेंड का आप नेम ना यूज लेके क्या यूज ले रहे हो, या जो भी उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज ना लेके क्या यूज ले रहे हैं, अगर हम उसका एब्रिविएशन, तो भी हमें उसे किस में लिखना है? इन ब्रैकेट्स. ओके, अब हमारे मन में कभी कभार ये क्वेश्चन उठता भी होगा कि हमने ऐसा क्यों किया कि इनके लिए ब्रैकेट, Cl के लिए ब्रैकेट क्यों नहीं? क्योंकि हमें तो लगता है कि C और L, यहाँ भी तो 2 अक्षर है ना, तो इनको भी ब्रैकेट में लगाना चाहिए. कोई ये समझ ले कि कार्बन एंड L, but L stand for nothing. We know that Cl is a chlorine.
उसमें हमें कभी डाउट नहीं हो सकता। बट अमोनिया के लिए ऐसा क्यों किया? अगर मैं मान लो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाती हूँ और डायरेक्टली लिख देती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी? NH3 हमें उसका मतलब भी समझ में नहीं आएगा। हम सोचेंगे इज इट NH33? मे बी हम सोच सकते हैं कि यहाँ के नाइट्रोजन लिगेंड है एंड हाइड्रोजन लिगेंड है एंड 33 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो फॉर अवॉइडिंग ऑल दिस कंफ्यूजन हम पेरेंथेसिस यूज लेते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन स्टेप 3। एज अमोनिया हमने जैसे पहले स्टेप में CO को सबसे पहले लिख दिया। सेकंड स्टेप में हमें ये पता चला कि अमोनिया को पहले लिस्ट करेंगे देन क्लोरीन। थर्ड स्टेप में हमें ये पता चला कि NH3 को ब्रैकेट्स में बंद करेंगे। सो एंड पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी को भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करना है। सो हम यहाँ तक पहुंच गए। इसका फॉर्मूला हमने कैसे लिख दिया? CONH3 thrice Cl3 ब्रैकेट क्लोज। नाउ द नेक्स्ट रूल, there should be no space between the ligand and the metal within the coordination sphere. फिफ्थ रूल यह कहता है कि जब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो फॉर्मूला लिखते वक्त हमें कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना बिटवीन लिगेंड्स एंड सेंट्रल एटम। और मैंने यहाँ बहुत स्पेस छोड़ रखा है, so I should remove all the spaces. So this is not correct. So this is not correct, and this one, the writing in this way is correct. Okay. Step fifth, charge on coordination entity. ये मैं पहले ही निकाल के रख रही हूँ because in my rule 6 or rule 7 I have to use this. Okay. So charge on coordination entity कैसे निकालते हैं? जैसा हमने पहले भी बहुत बार ट्राई किया है, charge on coordination entity is simply equal to charge on central atom plus total charge on the ligands. Okay. Charge on coordination entity equal to charge on central atom plus total charge on ligand. Here charge on central atom is 3+, जैसा मैंने पहले मेंशन किया था in the starting जब मैं बता रही थी example is cobalt +3 is bonded with 3 chlorine and 3 ammonia. There I mentioned that cobalt is +3, so वहां से मैंने ये यूज लिया कि charge on central atom is 3+. Now charge on ligand, ammonia is a neutral ligand, so 0 into 3, and fluorine have charge of -1, so -1 into 3. So fortunately here charge is 0. Okay, but कुछ भी आ सकता है. So total charge on coordination entity is here fortunately 0. Okay, पर ये positive negative कुछ भी हो सकता है. It is not necessary to be 0, positive or negative. The next step is when the formula of a charge coordination entity is to be written without that of the counter ion, the charge is indicated outside the square bracket as the right superscript with the number before the sign. जब भी हम किसी coordination entity को बिना उसके counter ions के लिखेंगे, counter ions क्या होते हैं? Those ions जो balance कर रहे हैं the charge of coordination entity. Okay, because whole compound is always neutral. So अगर coordination entity charge है, तो there should also be counter ions present in the compound for balance the charges. Okay, the charge is indicated outside the square bracket as right superscript. Superscript क्या होती है? जो charges की, जैसे हमने x square लिखते हैं, power, जो हम powers लिखते हैं मैथमेटिक्स में, वैसे ही superscript लिखी जाती है as right superscript like here with the number before the sign. So the correct way, the final correct way is this CONH36Cl3 charge to the power charge. I am not, I have, मुझे इसे charge नहीं कहना चाहिए to the power charge. To the power charge नहीं कहना चाहिए because it is not any power. It is a representation simply, okay? But here जैसे कि charge 0 है, that is coordination entity neutral है, so here is no need to write charge. लगभग यहाँ 0 ऊपर लिखते नहीं है, पर अगर कोई और चार्ज होता तो मेंशन किया जाता, पर 0 अगर कोई न्यूट्रल होता तो लिखा नहीं जाता. इसलिए मैंने यहाँ कंफ्यूजन ना उसलिए और भी एग्जांपल दिया ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी लाइक COCN6-3. इसको ऐसे ही नहीं लिखा हमने कि इस 3 को रिमूव करके हमने नहीं लिखा कि जैसे यहाँ 3 नहीं हो, बिकॉज दिस इज नॉट अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन. ऐसा हमें लगेगा अगर मैं इस 3 को ऐसे रिमूव कर देती हूँ तो हमें क्या लगेगा कि कोबाल्ट इज इन
+6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। या अगर ऐसा कोई रूल नहीं होता तो हमें पता भी नहीं चल पाता कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर हमें ये पता ही नहीं चल पाता, अगर हम चार्ज यहाँ मेंशन ही नहीं करते, चार्ज कुछ भी अगर हो सकता, ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर हम मेंशन नहीं करते तो हमें कैसे पता चलता कोबाल्ट के पास क्या चार्ज है, मेटल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और फिर हमें कंपाउंड की कभी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। दिस इज द करेक्ट रूल कि आप कोई भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके ऊपर उसका चार्ज मेंशन करो। अगर आप चार्ज मेंशन नहीं करे तो उसके साथ काउंटर आयंस को मेंशन करो, ओके। एंड द सेवेंथ रूल इज द चार्ज ऑफ कैटायन इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ एनायन। This is what counter ions do, okay? Charge of any coordination entity is balanced by the charge of counter ions. In the similar fashion, the charge of cation is balanced by the charge of anion. So, ये सारे 7 rules थे for writing formula of coordination entity, and finally हमने formula लिख भी लिया है। हमें किसका formula लिखना था? हमें formula लिखना था of cobalt that is bonded with 3 ammonia and 3 chlorine. So finally this is the correct formula, CONH3 Cl3। और हमने ये भी सीख लिया कि ये कैसे लिखा जाता है। इस पर हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे after knowing how to write naming of coordination entities, okay? So let's discuss how to write naming of mononuclear coordination entity. The name of mononuclear coordination compound are derived by following principle of additive nomenclature. Thus, the group that surrounds the central metal atom must be identified in the name. They are listed as prefix to the name of the central atom along with the appropriate multiplier. The following rules are used when naming coordination compound. यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो नाम है वो लिखा जाता है बाय प्रिंसिपल ऑफ एडिटिव नोमेनक्लेचर। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एडिटिव नोमेनक्लेचर बाय द वे? एडिटिव नोमेनक्लेचर का प्रिंसिपल मतलब हर चीज को ऐड करके लिखना। अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना है तो उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उन सबके नेम को ऐड करके कंप्लीट नेम लिखना, ओके। बट उनका जो नेम है वो एक पर्टिकुलर फैशन में ऐड होता है, सही नहीं कि रैंडमली मैं किसी को भी पहले बाद में लिख दूं। देयर इज अ स्पेसिफिक रूल, ओके। सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट द रूल। एंड यहाँ एक और चीज लिखी हुई है, द ग्रुप दैट सराउंड द सेंट्रल एटम मस्ट बी आइडेंटिफाइड इन द नेम। वो ही नेम सही हो सकता है जिसके अंदर सेंट्रल एटम और जो ग्रुप उसको सराउंड करे वो सारे पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई किए जा सके। लाइक इफ आई एम गोइंग टू राइट एनी नेम ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और मैं सिर्फ सेंट्रल एटम का नाम लिख रही हूँ, सो दिस कांट बी अ गुड नेम बिकॉज मुझे उससे नहीं पता चलेगा कि लिगेंड कौन है, काउंटर आयन कौन है। And these are listed as prefix. The name of ligand are listed as prefix to the name of central atom. Prefix क्या होता है? जो आगे लगता है। So हमेशा name of ligand are written before the name of central atom. Okay, along with appropriate multiplier. मतलब वो जितने भी है, like अगर किसी coordination compound के अंदर 3 chlorine है as ligand and 3 ammonia as ligand. So मैं का जब नाम लिखूंगी तो उनके मल्टीप्लायर को भी वहां मुझे शो करना होगा कि वो कितने है, मतलब उनकी क्वांटिटी या उनकी नंबरिंग कितनी है, ओके। द फॉलोइंग रूल आर यूज्ड व्हेन नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द रूल्स। द फर्स्ट रूल इज cation is named first in both positively and negatively charged coordination entity. चाहे कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव हो या कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव हो, हमेशा पहले कौन किसका नाम आएगा? कैटायन का। मतलब इसका मतलब सिंपली ये है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसके 2 पार्ट होते हैं नॉर्मली, एक होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी और एक होता है काउंटर आयन, ठीक है। और कभी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि काउंटर आयन कैटायन होगा या जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो कैटायन होगा। कैटायन कोई भी हो सकता है, इट डिपेंड ऑन अपॉन द लिगेंड्स, द चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम एंड ऑल, ओके। पर इन दोनों में से काउंटर आयंस या कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो भी कैटायन होगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा, ओके। इफ if the counter ion is a cation, then it should be listed first. If coordination entity is a cation, then it should be listed first, okay. Like example, here is K for FeCN6. यहाँ K plus and FeCN6 minus 4 है, तो K plus is named before FeCN6 minus 4.
Or in this example, CONH36Cl3. The coordination entity is cationic and counter is Cl minus. So this CONH36 plus 3 is named before Cl minus. The second rule is the ligand are named in alphabetic order before the name of central atom ion. Ligand का नाम हमेशा सेंट्रल एटम के नाम से पहले लिखा जाएगा और किस ऑर्डर में लिखा जाएगा? इन alphabetic order. Here in brackets I have write that this procedure is reverse from writing formula. इसका मतलब क्या है? फॉर्मूला राइटिंग में हम क्या करते थे? पहले लिखते थे सेंट्रल एटम का नाम, फिर लिखते थे लिगेंड का नाम, पर इन नेमिंग दिस प्रोसीजर इज रिवर्स. रिवर्स मतलब उल्टा है. पहले लिखते हैं लिगेंड का नाम, फिर लिखते हैं सेंट्रल एटम का नाम, और लिगेंड का नाम किस ऑर्डर में लिखते हैं? अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं. ओके, एग्जांपल इन FeCN6-4 Cn is named before Fe+3 because Cn is a ligand and Fe+3 is central atom. The third rule is name of the anionic ligand and in O. Those of name of neutral and cationic ligand are same as their English name. जो भी anionic ligand होगा, अब यहाँ भी एक रूल है, जो anionic ligand होता है उसका नाम जो भी होता है उसमें ऐड क्या कर देते हैं? O. ओके, एंड जो न्यूट्रल और cationic ligand होते हैं उनके नेम सेम ही रहते हैं एज देयर इंग्लिश नेम. इंग्लिश नेम मतलब जो भी हम नॉर्मली नेम यूज लेते हैं, बट इंग्लिश नेम में सम एक्सेप्शन है. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन दिस चैप्टर कुछ 4-5 ऐसे ग्रुप्स है जिनका नाम जो हम यूजुअली लेते हैं वो यूज नहीं होता है हियर, बिकॉज नो नॉट बिकॉज द एग्जांपल आर एक्वा. H2O को हम यहाँ एक्वा कहेंगे, नॉट वाटर. यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम कहीं भी H2O को वाटर नहीं कहेंगे. कभी भी लिगेंड्स की नेम की कंपैरिजन में H2O को वाटर की तरह कभी कंपेयर मत करना. दिस इज टोटली रॉन्ग. H2O का नेम जो IUPAC ने सजेस्ट किया फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज एक्वा. एक्वा फॉर H2O. AMMINE, amine for NH3. Carbonyl for CO, not carbon monoxide. Okay, and nitrosyl for NO. इसको अमीन कहते हैं. यहाँ अमोनिया कभी मत लिखना है NH3 को, इसे कार्बोनिल ही लिखना है, कार्बन मोनोक्साइड नहीं लिखना. एंड वन वेरी गुड क्वेश्चन अराइज फ्रॉम हियर. जो क्वेश्चन क्या है, जो NH3 है उसका जो नेम है वो AMMINE यूज होता है, ना कि AMINE. आई मीन इसमें अमीन की जो स्पेलिंग होती है वो AMMINE यूज होती है. दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन JEE मेंस कि बताओ क्या होता है IUPAC नेम ऑफ NH3. एंड ऑप्शन आर अमोनिया, AMINE, AMMINE, and fourth is none of these. So everyone take the second option AMINE और सबका गलत हो जाता है. Why? Because IUPAC ने नेम बताया इसका AMMINE. ओके, एंड और जो भी न्यूट्रल एंड कैटानिक लिगेंड उन सबका नेम सेम रखा जाता है एज देयर इंग्लिश नेम एक्सेप्ट दिस 4 एग्जांपल. एंड एनायनिक लिगेंड के नेम को O सेंड करते हैं. सो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल बता रखे हैं कि कैसे नेम को चेंज करना फॉर एनायनिक लिगेंड. सो लेट्स हैव अ लुक. इफ एनायनिक लिगेंड इज प्रेजेंट in complex pair, then last E is replaced by O. Okay, अगर एनायनिक लिगेंड प्रेजेंट है तो लास्ट E को किससे रिप्लेस कर देते हैं? O से. मतलब O ऐड नहीं करना होता, रिप्लेस करना होता है. ओके, अगर जैसे लास्ट में किसी के आइट आता है तो उसे आइटो कर देंगे, IDE आता है तो उसे आइडो कर देंगे, एट आता है तो एटो कर देंगे. बट अगर किसी में YL आता है तो उसको चेंज नहीं करते. जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, दिस इज विनाइल ग्रुप, तो इसका जो नेम है वो भी विनाइल यूज होता है. इसका नाम विनाइलो ऐसा नहीं करते. सेम फॉर CH3 माइनस, इसका नाम मिथाइल यूज होता है. बट जिनके चेंज आते हैं F माइनस को सिंपली हम फ्लोरीन कहते हैं तो इसे फ्लोराइडो कहते हैं इन IUPAC. H माइनस जो हाइड्राइड होता है उसे हाइड्राइडो, हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्साइडो. दिस इज O2 माइनस दैट इज परऑक्साइड, इसे परऑक्साइडो. O2 माइनस सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइडो. O2 O2 को कहते हैं डाइऑक्सीजन. दिस इज न्यूट्रल. यहाँ बीच में भूल से न्यूट्रल लिगेंड भी बता दिए कि नेम डाइऑक्सीजन होता है इसका. जैसे हमने पहले इन डेफिनेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स में पढ़ा था
कि कुछ न्यूट्रल लिगेंड है, जैसे O2 को डाई ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन नहीं कहना, N2 को डाई नाइट्रोजन कहना है. Okay, this is N3 minus, that is nitride. So remove E and add O, nitrido. N3 minus azido. This is cyclopentadienyl. तो जैसे मैंने बताया YL जिसका आता है उसको रिमूव नहीं करते. ओके, सो इसका नाम साइक्लोपेंटाडाइनाइल ही लिखा जाता है. CO3 2 minus carbonato. Carbonate, remove E, add O, carbonato. Sulfite, SO3 2 minus sulfite. So sulfito. Glycinate, GLY minus glycinato. OX2 minus oxalate, oxalato. ACAC minus acetyl acetonate. So acetyl acetate. So it changes to acetyl acetonate. And CH3 minus to methyl. एज मैंने आपको पहले बताया था कि हम एम्बिडेंटेड लिगेंड्स की नेमिंग के बारे में बात करेंगे इन IUPAC नेमिंग. सो यही हम डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट आर एम्बिडेंट एग्जांपल ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स और उनकी क्या नेमिंग है. सी अभी IUPAC ने कुछ रूल चेंज किए हैं इन रिसेंट ईयर्स के अंदर फॉर नेमिंग ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड. सो यहाँ मैंने ओल्ड नेम एंड न्यू नेम दोनों लिखे हुए हैं इन सबके, बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर आपको कहीं न्यू नेम नहीं मिले तब कंफ्यूज ना हो कि ओल्ड नेम भी याद रख सकते हैं. ओके, कि हमारे क्वेश्चन गलत ना हो. सो दिस इज CN माइनस व्हेन डोनेशन बाय C. सो जब CN माइनस C से डोनेशन करता है तब पहले से साइनाइड कहते थे, और जब CN माइनस डोनेशन करता है बाय नाइट्रोजन तो पहले हम इसे कहते थे आइसोसाइनाइड. ओके, पर अभी न्यू नेमिंग के अंदर हमने आइसोसाइनाइड साइनाइड हटा के सिंपली साइनाइडो C एंड साइनाइडो N कर दिया. हियर इज सम मिस्टेक. यहाँ आई विल रिमूव दिस. आई थिंक यहाँ सिंपली साइनाइडो N ही आएगा. ओके, सो दिस इज अ करेक्शन. यहाँ साइनाइडो N ही आएगा क्योंकि IUPAC ने अब साइनाइड आइसोसाइनाइड रिमूव करके जो भी डोनर एटम होता है आगे उसको मेंशन कर दिया जाता है. दिस इज साइनाइडो C एंड दिस इज साइनाइडो N. ओके, एंड दिस इज NO2 माइनस. NO2 माइनस में भी अब दो पॉसिबिलिटी है. वन इज डोनेशन बाय नाइट्रोजन एंड अदर इज डोनेशन बाय ऑक्सीजन. सो जब डोनेशन बाय नाइट्रोजन होता है तो उसे पहले नाइट्रो लिखते थे, और जब डोनेशन बाय ऑक्सीजन होता था तब उसे नाइट्राइटो कहते थे. पर अब IUPAC ने इन दोनों की नेमिंग को चेंज करके दोनों को, एक को नाइट्राइटो N लिखा है और एक को नाइट्राइटो O, बिकॉज ये भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है. मैं दोनों को नाइट्राइटो नहीं लिख सकते बिकॉज हमें पता है कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा कि नाइट्रोजन डोनर है ऑक्सीजन डोनर है. बट इफ आई क्लियरली मेंशन हु इज द डोनर इन द लास्ट, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. एंड इट इज वेरी सिंपल टू रिमेम्बर. दो नाम हमें कंफ्यूजन दे सकते हैं कि इनमें कौन नाइट्रो है कौन नाइट्राइटो है, पर सिंगल नेम से कभी कंफ्यूजन नहीं होता. So NO2 minus when it is donated by nitrogen is named as nitrito N, और जब ऑक्सीजन डोनेट करता तब nitrito O. Similarly in this dithioxylato and this is dithioxylato SS and dithioxylato OO. Okay. Now, the fourth rule is prefix mono, di, tri, etc. are used to indicate the number of individual ligands in the coordination entity. जैसे मैंने आपको बताया था कि coordination entity का name लिखते हुए we have to write the appropriate multiplier along with the name of ligand. So वो multiplier का name के लिए जो prefix use होता है वो प्रीफिक्स होता है मोनो, डाई, ट्राई एक्सेट्रा. ओके, एंड व्हेन द नेम ऑफ लिगेंड इंक्लूड अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, पर अगर किसी लिगेंड के नेम के अंदर पहले से कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ रहा है, जैसे ट्राइफेनाइल फॉस्फीन PPH3, इसमें एक फॉस्फीन होता है वो 3 फिनाइल से अटैच होता है. ओके, इट इज अ वेरी गुड लिगेंड एंड वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन दिस चैप्टर. सो इसका नाम क्या है? ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, इसका IUPAC नेम. अगर ये
इसके आगे मैं ट्राई लगाती हूँ, डाई लगाती हूँ, तो कुछ कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो आईयूपीएसी ने इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या किया है, ऐसे न्यूमेरिकल ऐसे लिगेंड्स जिनके नाम के अंदर पहले से कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आता है, उनके लिए हम क्या यूज़ लेते हैं? बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस इन द प्लेस ऑफ डाइट्राई टेट्रा, ओके? और अगर कोई लिगेंड का नेम बहुत बड़ा होता है, जैसे इथाइलिन, डायमीन, टेट्राएसिटेट, ओके? तो उनके आगे भी हम क्या लगाते हैं? डाइट्राई टेट्रा नहीं लगाते, उनके आगे भी हम बिस, ट्रिस, टेट्रा किसे लगाते हैं, ओके? The ligand to which they refer being placed in parenthesis. इनको यूज लेते हैं in the place of ditri tetra and जिनके लिए यूज होता है उनको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. This is important to remember कि अगर मैं ट्राइफेनाइल फॉस्फीन के आगे बिस्ट्रिस टेट्रा के ऐसा कुछ भी लगा रही हूँ तो मुझे ट्राइफेनाइल फॉस्फीन को ब्रैकेट में लिखना होगा. Okay, here is example NiCl2P thrice twice. Okay, that is दो क्लोरीन एंड दो phenyl phosphine, no, 2 phosphine इससे अटैच है, ओके, 2 triphenyl phosphine इससे अटैच है विद निकल. तो अभी हमें नहीं पता इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, बट फॉर अ मोमेंट हम मानते हैं कि दिस आईयूपीएसी नेम इज ट्रू. तो इसमें कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है? डाइक्लोरो. और फॉर दिस बिकॉज इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेम और इसके अंदर पहले से एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, तो इसके लिए हमने 2 के लिए यूज किया बिस. अगर 3 होता तो ट्रिस यूज लेते, अगर 4 होगा तो टेट्रा किस यूज लेंगे, ओके? Is named as dichlorobis triphenyl phosphine nickel second और triphenyl phosphine को ब्रैकेट में लिखा. The fifth rule is oxidation state of the metal in cation, anion or neutral coordination entity is indicated by Roman numeral in parenthesis. जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल का, चाहे वो केटायनिक एंटिटी हो, एनायनिक एंटिटी हो या न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो, वो किस से रिप्रेजेंट होगा? बाय रोमन न्यूमरल. रोमन जो न्यूमेरिक जो मैथ्स में रोमन हमने काउंटिंग सीखी है उससे यूज होगा एंड वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा. लाइक हियर इन दिस एग्जांपल निकल क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था इसलिए निकल के ब्रैकेट में लिखा है 2 इन रोमन. The sixth rule is if the complex ion is a cation or neutral, the metal is named same as the element as its English name. अगर कॉम्प्लेक्स आयन जो मेरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है अगर वो कैटायन या न्यूट्रल होती है तो मेटल जो उसके अंदर सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम सेम ही होगा एज इट्स इंग्लिश नेम, ओके, एज इट्स एलिमेंटल नेम. जो हमने पीरियोडिक टेबल में नेमिंग पढ़ी है ना, स्कैंडियम, टाइटेनम, प्लैटिनम, प्लैटिनम, कॉपर, जिंक, ओके, वैसे ही नाम यूज होंगे. फॉर एग्जाम्पल CO in complex cation, अगर CO प्रेजेंट है इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो क्या है कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है तो CO का नाम कोबाल्ट लिखा जाएगा. अगर PT है तो प्लैटिनम यूज लिखा जाएगा, ओके. बट यहाँ कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है. कंफ्यूजन क्या होती है? कंफ्यूजन ये होती है हमें कि कुछ कुछ ऐसे मेटल भी है जिनके दो दो नाम है. जैसे Fe को कोई आयरन कहता है तो कोई फेरस कहता है, कोई Ag को सिल्वर कहता है तो कोई अर्जेंटेट कहता है, कोई Au को गोल्ड कहता है तो कोई ऑरेट कहता है, कोई Pt को प्लेटिनम कहता है, हाँ, कोई Cu को कॉपर कहता है, कोई क्यूप्रेट कहता है, ओके. तो तब इनमें से कौन सा यूज लिया जाए? सो जो इंग्लिश नेम है इन सब के, जो पेरेट है या अर्जेंटेट है या ऑरेट है या क्यूप्रेट है, दे आर लैटिन नेम, दे आर नॉट इंग्लिश नेम. सो मैं यहाँ क्लियरली मेंशन कर रही हूँ अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायनिक या न्यूट्रल है उसके अंदर अगर Fe आता है तो उसका नाम आयरन लिखना है, Ag आता है तो सिल्वर लिखना है, Au आएगा तो गोल्ड, Pt आएगा तो प्लैटिनम, Cu तो कॉपर, बिकॉज दे आर द इंग्लिश नेम. If the complex ion is an anion, the name of metal and with the suffix ate. अगर जो मेरा कॉम्प्लेक्स आयन है, जो मेरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, अगर वो एनायनिक है, मींस अगर उसके जो चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज है तो उसके अंदर जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसका नेम लिखते हुए उसके साथ एक सफिक्स लगेगा 8. सफिक्स क्या होता है? जो नाम की आखिरी में लगता है, तो उसके नाम के आखिरी में एक सफिक्स लग जाएगा 8. फॉर एग्जाम्पल CO in complex anion COSCN4-2. इस कॉम्प्लेक्स
एनायन की अगर मैं नेमिंग करती हूँ तो मैं सीओ को कोबाल्ट नहीं लिखूंगी, कोबाल्टेट लिखूंगी। मैंने क्या सफिक्स ऐड किया है, ATE। फॉर सम मेटल द लैटिन नेम आर यूज्ड इन द कॉम्प्लेक्स एनायन। ओके, कुछ मेटल के लैटिन नेम यूज होते हैं इन कॉम्प्लेक्स एनायन। मतलब कुछ मेटल ऐसे हैं अगर वो प्रेजेंट होते हैं इन एनी कोऑर्डिनेशन एंटिटी व्हिच इज एनायनिक तो उनके लैटिन नेम यूज लेते हैं। जैसे Fe का लेते हैं फेरेट, एंड Ag का लेते हैं अर्जेंटेट, Au का लेते हैं ऑरेट, Cu का लेते हैं क्यूपरेट और Pt का लेते हैं प्लेटिनेट। जैसे हेयर मोर एग्जांपल, Ni को नॉर्मल नेम होता है निकल, तो 8 लगाया निकलेट। Cu को क्यूपरेट, जिंक का नॉर्मल नेम होता है जिंक, तो 8 लगाया जिंकेट। मर्क्यूरेट, Pb को प्लम्बेट, Plumbate, Au को ऑरेट, and this is W, tungstenate, Pt, platinate, Ag, argentate, Cd, cadmiate, Os, osmate, OS is osmium, Cd is cadmium. Okay, इनका नेम cadmiate and osmate लिखा जाता है। The seventh rule is the neutral complex molecule is named similar to the name of complex cation. वैसे तो मैंने पहले भी हर जगह मेंशन कर दिया था न्यूट्रल और कैटायनिक, पर एनसीईआरटी में हम देखेंगे लाइक हियर मैंने यहाँ लिखा है कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन और न्यूट्रल, बट एनसीईआरटी में यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन या शायद न्यूट्रल, इन दोनों में से सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई है। इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन, ओके, सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है। तो इसलिए एनसीईआरटी ने आगे एक नोट और मेंशन किया कि जिस तरीके से जो रूल्स हम फॉलो करते हैं फॉर नेमिंग ऑफ मेटल इन कॉम्प्लेक्स कैटायन या एनायन फॉर कॉम्प्लेक्स कैटायन, वो सेम रूल हमें न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एंटिटी के लिए भी यूज लेने हैं। ओके, अब हम 3 एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में भी गिवन है और हम अच्छे से समझते हैं कि कैसे नेमिंग करनी है। यह एक एग्जांपल है जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है क्रोमियम, NH3 थ्राइस, H2O थ्राइस एंड Cl3। अब हम देखते हैं कि इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी नेमिंग देखेंगे एंड देन हम ट्राई करेंगे बाय आवर ओन कि कैसे नेमिंग करनी है। ओके, सो सबसे पहले द कॉम्प्लेक्स आयन इज इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट व्हिच इज कैटायन। यहाँ जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है दिस इज कैटायनिक। कैसे पता चला? क्योंकि ये पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हमने पहले लिखा हुआ है एंड पहले हमेशा कैटायन को लिखते हैं, सो हियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज कैटायनिक। Okay, this is the first thing. The amine ligand are named before. Here are two ligands. One is amine and the second is aqua. So the amine ligand are named before the aqua ligand according to the alphabetic order. तो पहले किसका नाम आएगा? अमाइन का, देन aqua। क्यों पहले m आता है, क्यों आता है? पहले m आता है। ओके, सो पहले अमाइन को लिखेंगे देन aqua को। Since there are 3 chloride ion in the compound, the charge on the complex ion must be +3। क्योंकि यहाँ 3 काउंटर आयन है क्लोरीन, यहाँ 3 क्लोरीन आर बिहेविंग एज काउंटर आयन, तो टोटल काउंटर आयंस का चार्ज हो गया -3, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का क्या चार्ज होगा? +3। ओके, so the charge on the complex ion must be +3 since the compound is whole electrically neutral. From the charge on the complex ion and the charge on the ligand, we can calculate the oxidation number of metal. जैसा हमने definition of some important term pertaining वाली वीडियो के अंदर देखा था कि how to calculate oxidation number of a metal. Oxidation number of a metal is equals to oxidation of a charge on the coordination entity minus total charge of ligand. So here charge on coordination entity is 3 and total charge of ligand is 0 because all the ligand here are neutral ligand. So the charge on Cr is +3. Okay. In this example, all the ligand are neutral molecule. Therefore, the oxidation number of chromium must be the same as the charge of complex ion. अब हमें हर चीज की इंफॉर्मेशन मिल गई है, हमें ये पता चल गया है कि हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, कैटायनिक है। और हमें ये भी पता है कि पहले कैटायन को लिखना होता है, मतलब हम पहले नेम किसका लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, और लास्ट में लिखेंगे काउंटर आयन का। एंड सेकेंड थिंग, बिकॉज कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायनिक है, सो जो क्रोमियम है उसका इंग्लिश नेम यूज होगा।
the third thing is this कि amine को पहले लिखेंगे with appropriate multiplier then aqua. Okay, so अब हम सपोज कर सकते हैं कि इसका नेम क्या होना होगा. सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नेम, एंड कोऑर्डिनेशन एंटिटी में भी सबसे पहले लिगेंड का नेम. ओके, सबसे पहले इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नेम एंड उसमें भी सबसे पहले लिगेंड का नेम. लिगेंड में भी पहले नेम होगा अमीन का, सो द नेम शुड बी समथिंग ट्राई अमीन, देन ट्राई एक्वा. अब हमें क्रोमियम का नेम लिखना है, और बिकॉज coordination entity is cationic, so this is chromium. Triamine, triaquachromium, and brackets में उसकी oxidation state लिखिए in Roman numeral, so 3, and then chloride. Let's see, is it correct or wrong? Yeah, this is correct. Triamine, triaquachromium, third chloride. See, यहाँ हम 3 chloride नहीं लिखेंगे, यहाँ हम trichloride यहाँ mention नहीं करेंगे. Okay, बिकॉज कभी भी काउंटर आयन की नंबरिंग बताने की जरूरत नहीं होती. एज वी नो कि हमें इस इंफॉर्मेशन से हमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी का चार्ज आराम से पता चल रहा है. कैसे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी के जो मेंबर है वो है अमीन, एक्वा, 3 अमीन, 3 एक्वा, और एक क्रोमियम जो है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. सो 0 into 3 plus 0 into 3 plus 3, तो टोटल चार्ज of coordination entity जो किसके इक्वल होता है, चार्ज ऑन लिगेंड प्लस चार्ज ऑन सेंट्रल एटम इज +3. तो वो खुद ब खुद इंडिकेट करता है कि क्लोरीन 3 ही होंगे. सो देयर इज नो नीड टू मेंशन ट्राइक्लोराइड. जैसे कि हम MgCl2 का नेम हमेशा मैग्नीशियम क्लोराइड लिखते हैं, कभी भी हमने उसे मैग्नीशियम डाइक्लोराइड नहीं लिखा, बिकॉज writing di is unnecessary, because we already need, because we already know that it should be dichloride in MgCl2. So this is something that is unnecessary. Okay, तो वो हम यहाँ mention नहीं करते. Let's see another example. Here is CO, NH2, CH2, CH2, NH2. ये किसका फॉर्मूला होता है? ethylene diamine. This is ethylene and 1 and 2 diamine. Okay, thrice, COEN thrice. एंड बाहर ब्रैकेट्स जो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर 2 लिखा हुआ है एंड SO4 के बाहर 3 लिखा हुआ है. दिस इज टू बैलेंस चार्ज लाइक Al2SO4, Al2O3. एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कैसे लिखते हैं? Al2O3. चार्ज Al पे +3 होता है एंड ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो वो चार्ज उनके हम लेग्स पे लिख देते हैं. ओके, पैरों में लिख देते हैं चार्जेस को. एक्सप्लेनेशन. द सल्फेट इज द काउंटर आयन. The sulfate is the counter anion in this molecule. Since it takes 3 sulfate to bond with 2 complex cation, the charge on each cation must be +3. क्योंकि यहाँ 3 सल्फेट चाहिए हमें 2 कॉम्प्लेक्स आयन से बॉन्ड होने के लिए, और हमें पता है कि एक सल्फेट पे चार्ज होता है -2, तो 3 पे होगा -6, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स कैटायन पे चार्ज है +6, सो एक पे कितना होगा? +3. So here we know that the charge on the complex cation must be +3. Further, ethylene diamine is a neutral molecule, so the oxidation number of cobalt in the complex must be +3. जैसे कि यहाँ जो ligand है वो है neutral, तो जो charge on coordination entity है that should be equal to the charge on metal. Remember that you never have to indicate the number of cation and anion in the name of anionic compound. जो अभी मैंने ऊपर भी रिपीट किया था इसी चीज को, कि ये हमेशा हमें याद रखना है कि हमें कभी भी नहीं इंडिकेट करना नेम ऑफ कैटायन एंड एनायन इन द नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड. ओके, जैसे MgCl2 में कभी मैग्नीशियम डाइक्लोराइड नहीं लिखते. नाउ सी कि इसका नाम क्या होगा. हमें पता है कि जो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो कैटायनिक है, तो पहले उसका नेम लिखेंगे, और जो लिगेंड है वो इथाइलिन डायमीन है. ओके, एंड हमने जैसे पढ़ा था कि जो भी लिगेंड्स होते हैं जिनका नाम बहुत बड़ा होता है, इनके लिए बिस ट्रिस टेट्रा के जैसे प्रीफिक्स यूज होते हैं, एक्सेप्ट ऑफ डाइट्राइड टेट्रा की जगह बिस ट्रिस यूज होता है. सो 3 है तो इसके लिए ट्रिस यूज होगा. सो ट्रिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड. कोबाल्ट थर्ड क्यों लिखा? क्योंकि कैटायनिक एंटिटी है, तो इंग्लिश नेम कोबाल्ट थर्ड सल्फेट. लेट्स सी.
trisethylene 1,2-diamine cobalt third sulfate. This is one more example. यहाँ जो हमारी coordination entity है, जो cation and anion both are complex. Okay. So by the rule, पहले हम cation को लिखते हैं and then anion को, और हमें पहले से पता है कि cation को हमेशा formulation में पहले लिखा जाता है, तो we know that AgNH3 twice is cation and AgCN2 is anion. Okay. अब हमें पता लगाना है कि Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. तो जनरली हम XY मानते हैं. ओके, लेट्स माना कि Ag here is plus X और Ag here is in oxidation state X and Ag here is in oxidation state of Y. So हमें पता है टोटल चार्ज is 0 on this whole compound. इस whole compound के अंदर टोटल चार्ज क्या है? 0. So X plus 0 times 2 plus Y plus 2 times minus 1 equal to 0. So X plus Y equal to 2. Okay. So here X plus Y equal to 2. Okay. X के oxidation state on this Ag and Y is oxidation state of this Ag. अब यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि x की वैल्यू 0 हो सकती है, y की 2 हो सकती है, या x 2 हो सकता है, y 0 हो सकता है, x और y दोनों 1 1 हो सकता है. पर दिस इज नॉट मैथ्स. ओके, दिस इज केमिस्ट्री. यहाँ Ag है वो हर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं मिलता. Ag की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 ही होती है. सो जो सॉल्यूशन इसे सेटिस्फाई करेगा वो होगा x एंड y बोथ आर 1 1. यहाँ भी Ag plus 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और इधर भी Ag plus 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा. अगर यहाँ Ag plus 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता तो AgNH3 twice के this whole coordination cationic coordination entity पे चार्ज होगा +1 and here if Ag +1 में होता तो whole coordination entity पे चार्ज होगा -1 because Ag पे चार्ज है +1 and जो ligand है वो cyanide है जो है negatively charged. So total charge is -1. अब पहले हम इस कैटायन का नाम लिखेंगे देन अनायन का नाम लिखेंगे. कैटायन में भी पहले यहाँ लिगेंड का नाम. तो लिगेंड है अमीन, डाई अमीन. देन बिकॉज इट इज अ कैटायन तो इसका इंग्लिश नेम लिखेंगे जी का, डेट इज सिल्वर, डाई अमीन सिल्वर 1. ओके, एंड दिस इज AgCN ट्वाइस. अनायन क्या है? AgCN ट्वाइस. अब इसकी नेमिंग की बारी. तो पहले तो लिखना है लिगेंड का नाम. तो डाईसाइनाइडो. ओके, एंड नाउ अब इस मेटल की नेमिंग करनी है. और ये मेटल कौन सी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में प्रेजेंट है? एक एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में. तो इसका नाम क्या होगा? अर्जेंटेट. सो अर्जेंटेट 1. तो द कंप्लीट नेम इज डाईअमीन सिल्वर 1 डाईसाइनाइडो अर्जेंटेट 1. अब जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था हम कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं अबाउट द हाउ टू राइट फॉर्मूला एंड देन हाउ टू राइट IUPAC नेम. सो लेट्स सी. ये क्वेश्चन मैंने NCERT से लिया है. यहाँ लिखना है राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम लिखा हुआ और हमें इसका फॉर्मूला बताना है कि फॉर्मूला क्या होगा. ओके, सो पहले एग्जांपल नंबर 1 को करते हैं. कंपाउंड नेम इज टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड. टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड मतलब 4 अमीन है, 4 एक्वा है, मतलब 4 H2O है, कोबाल्ट है वो +3 के अंदर है और काउंटर आयन है क्लोराइड. अभी हमें नहीं पता क्लोराइड की नंबरिंग क्या है, बट फॉर्मूला राइटिंग में हमें क्लोराइड की नंबरिंग चाहिए, वो भी हम अभी निकाल लेंगे. So let's see how to do this. As chloride is written after cobalt in IUPAC naming, that means it is counter ion. हमें कैसे पता चला कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायनिक थी? बिकॉज क्लोराइड को हमने कोबाल्ट के बाद में लिखा है और हमें पता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी का लास्ट एलिमेंट होता है उसका मेटल और उसके बाद जो भी होता है वो काउंटर आयन होगा. तो क्लोराइड इज काउंटर आयन बट वी डोंट नो हाउ मेनी काउंटर आयन इज प्रेजेंट. पर हमें पता है नंबर ऑफ काउंटर आयन इक्वल टू चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी डिवाइड बाय चार्ज ऑन काउंटर आयन. हमें ये पता है कि total charge of counter ion equal to the mod of total charge on coordination entity is equals to the mod of total charge on counter ion.
सो एक काउंटर आयन पे चार्ज क्या होगा? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी डिवाइड बाय चार्ज ऑन काउंटर आयन. एज वी नो, नेम ऑफ लिगेंड इज रिटन बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल एटम. जैसा कि हमें पता है, जो लिगेंड का नेम है वो सेंट्रल एटम के नेम से पहले लिखा जाता है. दैट मीन्स हियर triamine and diacquar ligand. Okay, and triamine give us information that there are 4 amine, and diacquar give us information that there are 2 H2O. And we know what is the charge on coordination entity. Charge on coordination entity बराबर होती है charge on cation plus charge on ligand. And जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, मेंशन ब्रैकेट्स में किया हुआ है, चार्ज इज 3. सो 3 प्लस एंड चार्ज ऑन लिगेंड, अमोनिया पे चार्ज होता है 0, तो 4 अमोनिया पे भी टोटल चार्ज होगा 0. सिमिलरली H2O भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका भी चार्ज 0. तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज क्या है? 3. सो द नंबर ऑफ काउंटर आयन इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी के चार्ज का मॉड डिवाइड बाय the charge on counter ion. The mode of charge of counter ion, that is 1, that is 3, is the total number of counter ion. So now enclose ligand and central atom in square bracket and write counter ion outside of it. अब जैसे कि हमने पहले जो रूल्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग जो भी सेंट्रल एटम और लिगेंड है उनको किसमें ब्रैकेट्स में क्लोज कर दो और किसको बाहर लिख दो? काउंटर आयन को. एंड वन मोर थिंग, यहाँ हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बिकॉज हमें पता है नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी में भी लिगेंड को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं, फॉर्मुलेशन में भी लिगेंड को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं. तो हमारी एक और सिरदर्दी कम हो गई. पहले अमीन को लिखना है और फिर एक्वा को लिखना है इन बोथ नेमिंग एंड फॉर्मुलेशन. सो पहले कोबाल्ट लिखा, फिर अमोनिया 4 लिख दिया, H2O ट्वाइस लिख दिया, Cl3. दिस इज द फॉर्मूला. अब हम इन सब के भी फॉर्मुलेशन देख लेते हैं, पर थोड़ा जल्दी देखेंगे. ओके, सो सेकंड, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट सेकंड. हमने देखा कि निकलेट सेकंड, ये तो एंडिंग में लिखा हुआ है, मतलब एंडिंग के अंदर नेम है और सेंट्रल एटम के नेम के पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ. सो ये तो बताता है कि सेंट्रल एटम क्या होगा, पक्का जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो एनायनिक रही होगी. एंड पोटेशियम पहले लिखा हुआ है, सो दिस इज काउंटर आयन. काउंटर आयन इज पोटेशियम. तो हमें क्या पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर जो काउंटर आयन है वो पोटेशियम है. एंड लिगेंड क्या है? टेट्रासाइनाइडो. 4 साइनाइड लिगेंड और निकल क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड में. एस 4 साइनाइड लिगेंड है और निकल है ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड में, तो टोटल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होगा? 4 into -1 plus 2. ओके, दैट इज -2. तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का चार्ज हो गया -2 और पोटेशियम का जो चार्ज होता है वो होता है 1. तो नंबर ऑफ पोटेशियम इज mod of -2 divided by 1 equal to 2. So this can be written as K2NiCN4. Here is tris ethylene 1,2-diamine chromium chloride. अब सेंट्रल एटम के नाम के बाद में आ रहा है क्लोराइड, मतलब ये क्या है? काउंटर आयन है. और यहाँ जो लिगेंड है वो है इथाइलिन डाइअमीन EN, और क्रोमियम है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. और क्योंकि मेरा लिगेंड क्या है? न्यूट्रल, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे वही चार्ज होगा जो चार्ज है ऑन सेंट्रल एटम. सो चार्ज इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज 3 और चार्ज ऑफ मॉड ऑफ चार्ज ऑन 1 chloride is 1. तो टोटल क्लोराइड कितने होंगे? 3. 3 divided by 1 equal to 3. So it can be written as CrEn3Cl3. और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, En की जगह इसका फॉर्मूला लिख दो. And this amine bromide chloride nitrite 2 and platinate. Amine. ओके, here हम देख सकते हैं कि ना तो मेटल के पीछे कुछ है और ना लिगेंड्स के आगे कोई कैटायन का नेम लिखा हुआ है. इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल होना चाहिए. और हम देख भी सकते हैं प्लेटिनेट, यहाँ लिखा हुआ है प्लेटिनेट. ओके, प्लेटिनेट मीन्स कोऑर्डिनेशन एंटिटी. यहाँ प्लेटिनेट लिखा है. प्लेटिनेट मीन्स इट इज आई थिंक इट शुड बी प्लेटिनम. यहाँ कोई मिस्टेक है, प्लेटिनम होना चाहिए बिकॉज कोऑर्डिनेशन एंटिटी 0 चार्ज है, तो फिर इंग्लिश नेम यूज होना चाहिए प्लेटिनम. सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, यहाँ प्लेटिनम होना चाहिए. सो यहाँ लिगेंड है अमीन ब्रोमाइड क्लोराइड एंड नाइट्राइट 2. एंड हमें पता है ये अपने
आयु अपने अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही है, तो उसे सेम ऑर्डर में हम इसको फॉर्मुलेशन में भी लिख देंगे। पीटी देन अमोनिया, उसके बाद ब्रोमाइड दैट इज Br, देन क्लोराइड Cl और नाइट्राइटो NO2। ओके, नाइट्राइटो N है मतलब NO2 ने बॉन्डिंग कर रखी है थ्रू N, इसलिए मैंने NO2 लिखा, ONO नहीं लिखा। जब बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम अगर NO2 लिखते हैं तो इट मीन्स डोनेशन इज थ्रू नाइट्रोजन, एंड अगर ONO लिखते हैं इसे तो इसका मतलब है डोनेशन इज थ्रू ऑक्सीजन। जो भी पहले लिखा होता है उससे डोनेशन होता है। In this example, dichloroido-bis ethane 1,2-diamine platinate 4 nitrate। ओके, अब यहाँ सेंट्रल एटम के नाम के बाद लिखा हुआ है नाइट्रेट। नाइट्रेट होता है NO2 माइनस, मतलब जो मेरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है जिसका नाम पहले लिखा हुआ है वो पक्का कैटायनिक है। और बिकॉज एंड ऑल्सो हियर डाइक्लोराइडो बिस इथाइलिन डायमीन आर लिगेंड। 2 क्लोरीन है और EN कितने हैं? 2। ओके, एंड फ्रॉम दिस मैं चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी फाइंड कर सकती हूँ। एक लिगेंड है जिसका चार्ज है -1 और वैसे कितने हैं? 2 क्लोरीन है तो उन दोनों का चार्ज हो गया -2 और इथाइलिन डायमीन पे कोई चार्ज होता नहीं है, तो टोटल चार्ज ऑन लिगेंड इज -2 प्लस चार्ज ऑन सेंट्रल एटम इज +4, तो चार्ज ऑन टोटल कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज -2 + 4 = +2। सो द नंबर ऑफ नाइट्राइट इज, नाइट्रेट पे जो चार्ज होता है वो होता है NO2 माइनस। ओके, सो दस बिकॉज नाइट्राइट पे जो चार्ज होता है वो 1 होता है तो नंबर ऑफ नाइट्राइट शुड बी 1। सो Pt Cl2 En2 ब्रैकेट के अंदर इन सबको इंक्लोज किया एंड NO2। आई थिंक इट शुड बी 1। यहाँ कुछ गलती से लिखा हुआ है, आई थिंक इट शुड बी 2, सॉरी, आई हैव टू चेंज द फॉर्मेट। यहाँ 2 होना चाहिए, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। In this question, iron 3 hexacyanidoferiate second। यहाँ आयरन पहले मेंशन किया हुआ है देन फेरेट। ओके, सो ये बताता है कि आयरन, जो आयरन है दिस इज अ काउंटर आयन, एंड हेक्सासाइनाइडोफेरेट ये बताता है दिस इज द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जिसमें 6 साइनाइड इज एज लिगेंड एंड फेरेट जो उसके अंदर सेंट्रल एटम है वो है Fe इन कोऑर्डिनेशन एंड ऑक्सीडेशन नंबर 2। ओके, so from here I can calculate the charge on coordination entity, -6 + 2 that is -4, and जो counter ion है वो Fe है, so Fe+3 is the counter ion and coordination entity है FeCN6 -4। ओके, तो जब मैं उसे लिखूंगी तो जो चार्ज होता है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। Fe+3 में था, ये Fe+3 में था एंड दिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज था -4, so they are multiplied to the base of each। okay, so this formula is written as this। अब हमने ये तो देख लिया है कि IUPAC नेम दिया हुआ हो तो फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं कि अगर फॉर्मूला दिया हुआ हो तो IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। ओके, सो हियर वन फॉर्मूला इज गिवन, CuNH3 6Cl3, and this the ligand is NH3 amine। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसे निकालेंगे? माइनस ऑफ टोटल चार्ज ऑन काउंटर आयन, काउंटर आयन पे जो चार्ज है वो -3 है बिकॉज 3 क्लोरीन है, सो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज 3 एंड चार्ज ऑन सेंट्रल एटम किसके बराबर होता है? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी माइनस चार्ज ऑफ लिगेंड, एंड चार्ज ऑफ लिगेंड इज 0 बिकॉज amine is a neutral ligand times 6 because 6 amine है। This is charge on central atom is +3। So IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे कैटायन का नेम, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायनिक है तो पहले कैटायन का नेम लिखा, हेक्सा amine, then cobalt। Why? Because कैटायनिक entity है, so English name cobalt 3 chloride। No need to mention कि कितने क्लोराइड प्रेजेंट है। In this
जैसा हमें पता है पहले हमेशा केटाइन लिखा हुआ होता है, ओके, एंड यहाँ 2 है, मतलब जो चार्ज होगा टोटल ऑन दिस केटाइन, दिस कोऑर्डिनेशन केटाइनिक एंटिटी इज +2, ओके। एंड हम निकाल सकते हैं वेरी इजीली कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो सेंट्रल एटम है डेट इज कोबाल्ट, वो +3 के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि +3 में ये होगा, -1 में ये होगा क्लोरीन, देन टोटल चार्ज शुड बी +2 ऑन दिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब नाउ हमें इसका नेम लिखना है, ओके, अल्फाबेटिकली अमीन पहले आता है, देन क्लोरीन, सो पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। In this, cation is potassium and coordination entity is anionic. तो फेरस के लिए जो सेंट्रल एटम है इसके लिए जो नेम होगा वो फेरेट यूज होगा, ओके। एंड इस पे जो चार्ज है वो हम निकाल सकते हैं कैसे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज होगा -3 क्योंकि काउंटर आयन पे चार्ज है +3, एंड कोऑर्डिनेशन एंटिटी का चार्ज बराबर होता है चार्ज ऑफ लिगेंड प्लस चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम। उससे पता हमें चलेगा कि चार्ज ऑन Fe इज +3। सो सबसे पहले लिखते हैं कैटायन का नाम, दैट इज पोटेशियम। देन लिखना है एनायन का नाम, एनायन इज अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले लिखते हैं लिगेंड का नाम विद एप्रोप्रिएट मल्टीप्लायर, देन हेक्सासाइनाइडो सी, बिकॉज डोनर इज सी, जो पहले लिखा होता है वही डोनर होता है, एंड देन फेरेट थर्ड। In this example, potassium is counter ion and entity is anionic। Fe पे similarly charge निकालेंगे तो +3 आएगा। You can calculate, कैसे कैलकुलेट करेंगे? C2O4 -2 होता है, ओके। एवरी ऑक्सिलेट मॉलिक्यूल कैरी अ चार्ज ऑफ -2, तो वहां से हमें पता चलेगा फेरस पे चार्ज है +3, एंड जो मेरा लिगेंड है वो है ऑक्सिलेट। और जैसे मैंने आपको बताया था जो ऑक्सिलेट है ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है, एंड इसका जो भी बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड लिगेंड है इनके साथ डाइटर टेट्रा यूज नहीं लेते हैं। क्या यूज लेते हैं? बिस ट्रिस टेट्राकिस, ओके। सो पहले लिखा पोटेशियम, देन बिकॉज 3 थे देन ट्रिस, एंड जब भी हम ट्रिस ऐसे जो ट्रिस बिस ये यूज लेते हैं तो जिसके लिए भी ये यूज हो उनको ब्रैकेट में लिखते हैं। सो ब्रैकेट, इन ब्रैकेट ऑक्सलेटो देन फेरेट थर्ड। Why we use ferrate? Because coordination entity is negatively charged. Now in this K2PdCl4, potassium is counter ion, charge on coordination entity is -2, and from this we can very easily calculate the charge on PD, and the charge on PD come out to be +2। So यहाँ जो central atom है उस पे charge है +2 और coordination entity है anionic। सबसे पहले लिखते हैं cation का नाम, that is potassium, then cationic केटाइन के नाम के बाद एनायनिक एंटिटी में भी लिगेंड का नाम सबसे पहले टेट्राक्लोराइडो, देन प्लेडिनेट सेकंड, ओके। प्लेडिनेट बिकॉज कोऑर्डिनेशन एंटिटी एनायनिक है, ओके। इन दिस नेम यहाँ काउंटर आयन है क्लोरीन, दस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज है +1 बिकॉज सिर्फ एक ही क्लोरीन प्रेजेंट है, एंड लिगेंड क्या है? 2 अमोनिया है, एक क्लोरीन है और एक है इथाइलामीन, ओके। एंड हम देख सकते हैं सिर्फ एक ही लिगेंड है जो एनायनिक है, एंड दोनों रहे हुए लिगेंड क्या है? न्यूट्रल। सो द चार्ज ऑफ पीटी कैन बी इजिली कैलकुलेटेड टू बी +2। सबसे पहले केटाइन का नाम, केटाइन इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी हियर। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले लिगेंड का नाम एन, अल्फाबेटिक ऑर्डर, सो डायमीन क्लोराइडो, एंड जब भी कोई ऐसा लिगेंड होता है जिसका नेम कॉम्प्लेक्स होता है तो उसका नेम ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ हमने कोई डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी यूज नहीं लिया फिर भी ब्रैकेट में नेम लिखा। द रीजन इज, ऐसा महसूस अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी तो मे बी ऐसा हमें लग सकता है कि इथाइल अलग एक लिगेंड और अमीन अलग एक लिगेंड है, ओके। अगर यहाँ भी मैं ब्रैकेट यूज नहीं लेती एंड दिस, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट यूज नहीं लेती तो हमें लग सकता है NH2 minus is a ligand and also CH3 minus is a ligand, and मुझे लगेगा coordination number is of platinum is 5 and ligand are amine, chlorine, ethyl and amide, okay। So इन सारी confusion को दूर करने के लिए ब्रैकेट यूज होता है। So it is important to use bracket here also। diamine chlorido ethylene amine ethylamine in bracket, and then because coordination entity is cationic,
तो पीटी का इंग्लिश नेम यूज होगा प्लेटिनम एंड ब्रैकेट में इसका होगा ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन दैट इज सेकंड एंड सबसे लास्ट में काउंटर anion that is chloride. So the name is diamine chloridoethylamine platinum second chloride. So आज के लेक्चर के लिए इतना ही एंड फॉर मोर प्रैक्टिस आप एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं ओके एंड डू रिवाइज द रूल्स ऑल दिस रूल आर गिवन इन एनसीईआरटी मैंने भी एनसीईआरटी को ही रेफरेंस लिया है बिकॉज एनसीईआरटी हर एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी को ही माना जाता है अगर कुछ चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है तो उसी को ही सही मान के उसी को स्टैंडर्ड मान के हमेशा चेकिंग होती है सो बिकॉज ऑफ दिस मैंने भी अपने रूल्स को एनसीईआरटी से ही लिखा है ओके सो डू रिवाइज ऑल दिस एंड हम अगली क्लास में पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू